We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student friend follower, in today's session, you people are going to learn about White, Sir Thomas White, life work, and one poem. And and the secondly, we'll discuss his disciple Surrey. Surrey, his full name was Henry Howard, Earl of Surrey. So he was a student and disciple of White. Sir Thomas White, he traveled Italy, Germany, France, and when he went Italy, over there he influenced from Petrarch. He studied thoroughly about Petrarch and he influenced from his poetry. And he started writing poetry. He started imitating, copying Petrarch. So what what he does, he just takes the poem of Petrarch and he translates the same poem. He's not going to write his own poem, but he takes the poem of Petrarch and he translates into English. So this was a cause of bringing, sonnet from Italy to England. So this way, these Englishmen they brought Italian sonnet from Italy to England, and after that, way was paved for Philip Sidney, for Surrey, Philip Sidney, and rest of the Elizabethan poet like Edmund Spenser and Shakespeare. They also they were writing poetry as well. But origin of English poetry, if we talk about the origin of English sonnet, so they people, White and Surrey, they give the origin of sonnet, especially in English sonnets. So English sonnet is due to the two great men. One is Sir Thomas White and second is Surrey. So let's discuss their life. Sir Thomas White lived 1503 for 1542. Sir Thomas White, he was born in England, and Sir Thomas White, he's known as the founder of English sonnet because he brings in sonnet from Italy to England. So Sir Thomas White is also known as, father of the drab age. He's also known as the rebellion against Mary I and Philip II. He was present in the Tower of the London for adultery case. So when Sir Thomas White was over there, that time Henry VIII he was ruling England. Henry VIII was very cruel king, and he killed many wives. And finally, because he was interested to have son, he was not having son, so he was marrying again and again, so that he may have son, and this way he will leave his successor. So what happens? He kills his one wife, second, third, and finally he married Anne Boleyn. Anne Boleyn was a beloved of Sir Thomas White. Sir Thomas White loves her so much. But when she sees that Henry VIII, he was a king that time, and when he sees that he's approaching her and he fell in love and he's interested in Anne Boleyn started showing inclination toward Henry VIII. So she started showing inclination toward Henry VIII. So this way, Sir Thomas White he's worried. He loved Anne Boleyn. They had a good relation, an intimate and close. They enjoyed close relation. And now he started writing poetry. That there was a time when Anne Boleyn, she loves me so much. She comes to me and we had a good relation. She comes in my arms and we enjoyed a lot. But now, for sake of this king, she has left me.
So then he writes on female. His subject was female. Who, whom he is addressing, he is addressing to Anne Boleyn. And he was finally caught by Henry VIII, and he caught him, and there was a trial, and ultimately he fell in and he died. So Sir Thomas Wyatt, he was born in 1503 and he was died 1542. He had executions. He had executions. There was a trial against him and trial of adultery because he was interested in Anne Boleyn, and he was writing poetry and openly writing poetry for Anne Boleyn. So Anne Boleyn was a wife of Henry VIII, and Henry VIII was a very cruel king. So this is what the life of the uh, our poet Sir Thomas Wyatt, who is the founder of the English sonnet, because he gives the concept of English sonnet. He brought Italian sonnet into England, and finally he teaches his disciple known as Surrey, and Surrey finally experimented with sonnet. He gives you the concept of the sonnet. Before that, sonnet was written in octave and sestet. And you know what is octave? Octave, please write it down. Octave mean 8 line, and sestet means 6 line. In 8 line, poets tells the problem. He raises his questions. He raises a problem how beloved is cruel, and how beloved is gonna destroy him, and what happened to poet. So in 6 line, he gives a solution, because in 8 line he raises questions. He he shows the resentment, depression, anxiety, trouble, sufferings, and 6 line he gives you solution. So 8 line and 6 line, and this concept was taken from Italian sonnet by Petrarch. And after that, they practicing in England as well. So he was mere translating, but his student Surrey, he writes his own poetry as well, and he experimented with sonnet as well. How he experimented? He made sonnet four line quatrains, and he divided into three quatrain and two couplet, two three quatrains and one couplet. Quatrain mean 4 line stanza, and there are three 4 line stanza. They are round about 12, and then he added 2 line couplet. Couplet mean 2 lines. I will teach you. So if you want to remember, if you want to remind this great man, Sir Thomas Wyatt, so just remember, due to his there are 5 main points you should remember about Sir Thomas Wyatt. First of all, he is known as the father of the drab age. He committed adultery with Anne Boleyn, and he was executed by Henry VIII. He brought the Petrarchan sonnet in England. He is also known as the White Rebellion, and he is also known as the total total miscellany. Total miscellany was a writers, and he there is a book, collection of sonnets, collection of poems, which is known as Total Miscellany. So Total Miscellany was a person whose sonnets were contributed, included in his book. So that is why he is known as Total Miscellany. His collection of poems, and this book overall known as Total Miscellany. And there were almost 271 poems, songs and poems. And it was published. This book was published posthumously mean after the death of the writer. It was published 1557. So while the writer was died in 1542. So our writer was died in 1542, while his book was published in 1557. So this book was published posthumously. Posthumously mean when writer was died and his work was published. So he is known due to the father of the drab age, and committed adultery with Anne Boleyn, and brought Petrarchan sonnet, and known as a White Rebellion, and known as a total. He's known to due to his book collection of books, poems and
sonnets, and it is known as total miscellany. Miscellany was a person, his friend, and he contributed poems in his book. Sir Thomas White, also called White, born 1503, Allington's near Maidstones, Kent, England. Died 1542 due to illness and finally died. And he got executions because he had an illegitimate relation with Anne Boleyn, and Anne Boleyn was the wife of Henry VIII, and Henry VIII was very cruel king. He even killed his wives as well in a way to have son. So he even breaks the relation with the Roman Catholic Church, and he is the same king who, brought new church in England, because they broke, they just cut off their relation with the Roman Catholic Church, and they introduced their own church. That was a Protestant, Puritan or Protestant church. So before that, there was a one church, and mostly king, they were under the, they take instruction from the religious people, and that was especially Roman Catholic Church. So Roman Catholic Church, that does not allow him to marry, because they say that they were religious people, and they say that you are killing, you are cruel person, we don't allow you to have marriage. What he does, he just breaks a relation with Roman Catholic. They say that you are not concerned with us, we will have our own church. So he breaks a relation with the Roman Catholic Church, and they created their own church. Now let's study one poem. In this poem, Sir Thomas White, he's worried about his beloved, his beloved. She has left him. She has left him for sake of Henry VIII. Henry VIII was a king. And she may have a good life, due to kingship, due to fame and name. For Henry VIII, she left him, and now he's worried, and he gives you the he will give you the theme of separation, segregations, suffering, depression, resentment, anxiety, and stagnations. These are the theme of Sir Thomas White. So here Sir Thomas White, he is saying, I find no peace. Why Sir Thomas White is not finding peace? Because she has left him, and now he is suffering, and he is in resentment, anxiety, depressions, and suffering due to the previous relation, and he's in nostalgia. What happens? They had a good life, and both they enjoyed life, and Anne Boleyn had a good relation. She comes to him, and they embrace, they love, they kiss, and everything they enjoyed, and he's no in a nostalgia, and he recalling all these incidents, and he says, poet is happy and sad. Poet say that I am suffering and I am enjoying. So no, he will give you contradictions, as though poet is just in bafflement and confusion. He's unable to decide whether he's happy or sad. He gives you in paradoxical language, and sometime he will use alliteration over here. Sometime he will contrast and give you contradiction. Sometime he will say that he's happy. Sometime he will say he's sad. And there is, a kind of alliteration, paradoxical language. There will be some assonance. He will use rhymes, and he will raise questions in 8 lines, and 6th line he is going to give you answer. I say, what is the structure of Italian poem? Italian sonnet का क्या structure है? Italian जो sonnet है, उसका structure आपको इस तरह मिलेगा कि ऊपर 8 लाइन है, नीचे 6 लाइन है, और उसका स्ट्रक्चर है, राइमिंग स्कीम चलेगी ए बी बी ए, और नीचे क्या होगा, सी डी ई. अच्छा फातिमा, ये जो है, ये देखें, ये कितनी लाइंस हैं? ये 8 लाइन, और ये कितनी है? ये 6 लाइन. टोटल कितनी बनी? 14. अगर मैं इसकी राइमिंग स्कीम आपको बताऊं तो ये देखें, ये आइस और राइस दोनों आपस में राइम्ड हैं, ठीक है, और ये डन और ये ऑन
सीज ऑन जो है, ये दोनों ये भी राइम्ड है। तो आपको जो राइमिंग स्कीम मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, और उसके बाद सी डी सी डी। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि जो एंड साउंड है वो सेम हो, उसे राइम्ड कहते हैं। अंडरस्टैंड? फातिमा, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir, I got it. यस। तो इसमें क्या, एक हमारे पास 8 लाइन है और नीचे है हमारे पास 6 लाइन। यहाँ पे पोएट ने अपना प्रॉब्लम बतानी है, रिजेंटमेंट, नॉस्टैल्जिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, सफरिंग एंड यू नो, and love is just love has conquered him and now is unable to enjoy his life. He is not running his life, rather love, beloved, is running his life, and he's unable, and love has conquered him, and he has erected his his flag, has he unable to just throw it out because it has conquered him, and no more, and poet is no more himself, rather love is just operating him and running him, taking him here and there, and he is just a puppet in the hand of love, and he will say that he is no more. और वो अपनी सिचुएशन ऐसी आपको पोएट बताएगा, अभी हम पोएम पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि पोएट वाकई ही बहुत परेशान है। और पोएट परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी बिलवर्ड ने उसको छोड़ दिया और वो उसके लिए सफर कर रहा है। वो उसे बता रहा है कि उसको लाइफ उसकी ऐसे लगता है कि वो खुश भी है, परेशान भी है। पैराडॉक्स में बात करेगा। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि अब्सर्ड सी लैंग्वेज होगी कि वो खुश है या परेशान है, वो डिप्रेशन में है और साथ साथ डिसाइड कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा। तो both the thing with, they will go side by side. He will use hyperbole, he will use paradox, he will use contradiction, comparing and contrasting, he will show you anxiety, he will sometime use enjambment. Enjambment mean when poet can't use run on line. रन ऑन का मतलब होता है कि एक लाइन ऐसे चलती जाए कि उसकी सेंस नीचे लाइन पे भी आए और पूरे स्टैंजा में चलती रहे, तो उसे कहते हैं रन ऑन सेंटेंस। तो रन ऑन सेंस जैसे चल रही है, एक से आगे ट्रांसफर हो रही है। चलें देखते हैं, आपको मजा आएगा, अच्छी है। आई फाइंड नो पीस, मुझे कहीं भी पीस नहीं मिल रहा। आई फाइंड नो पीस, मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। एंड ऑल माई वार इज डन, मेरी सब लड़ाइयां खत्म हो गई हैं, मेरी कोई अब किसी से जंग नहीं। एन बोलन ने मुझे छोड़ दिया, उसने शादी कर ली किससे? हेनरी VIII से। एंड आई एम नो मोर एंड शी हैज लेफ्ट मी एंड माई ऑल फाइट, माई ऑल वार आर ओवर नाउ, नो मोर whom I have to fight, because she has left me, and she left me for good. She has left me for money, she has left me for status, she has left me for kingship, she has left me for kingdom, she has left me for throne. So what to fight, whom to fight? मेरी सारी लड़ाइयां खत्म हो गई। पोएट पहली बात ये करता है। अब जब लड़ाइयां खत्म हो गई हैं तो फिर उस पर परेशान होने की क्या जरूरत है? लेकिन कंफ्यूज्ड, पोएट हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आई फियर एंड होप, कहता है आई फियर, मैं खौफजदा होता हूं, एंड होप, और मुझे उम्मीद भी है। आई बर्न एंड फ्रीज लाइक आइस, मैं जलता हूं और मैं, कहता है कि बर्फ की तरह मेरा सारा जिस्म ऐसे है कि जैसे बर्फ की तरह जमा होता है, फ्रीज हो जाता है। अब देखें, एक साइड पे वो जल रहा है, एक साइड पे वो बर्फ की तरह ठंडा है, एक साइड पे खौफ है, एक साइड पे होप है। तो आपको मैंने जो बात की वो बात करेगा पैराडॉक्स की शक्ल में। इसे क्या कहते हैं? पैराडॉक्स। आपको ऑब्जर्व, Yes, sir. yes? उसके फर्स्ट सेंटेंस में भी उसने पैराडॉक्स बताई है, जैसे वार, आजकल लोग ब्रेकअप यूज करते हैं वर्ड, उसने वार का ही बता दिया हुआ है। यस, आई फाइंड नो पीस, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। मतलब आपको पैराडॉक्स जो होती है ना, वो ऐसी स्टेटमेंट होगी जो आपको दिखने में ऐसी लगेगी कि जैसे बिल्कुल बेकार है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई वो भी मीनिंग कैरी करती है। मतलब मैं आप मुझे कुछ कहती हैं, अगर मैं खामोश भी हो जाता हूं तो भले आप समझे ना समझे, वो भी रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स जो होता है, जो भी इवेंट होता है उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स, या तो मैं खामोश हो जाऊंगा या मैं चिल्लाऊंगा। ये तो रिएक्शन है ना कि मैं चिल्लाना शुरू हो जाऊं। एक मैं खामोश हो जाऊं, एक्सट्रीमली खामोश हो जाता हूं, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। इसे भी रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे रेमंड विलियम ने कहा था कि अगर कोई एक्शन रिस्पॉन्स नहीं हो, उसके ऊपर नहीं हो रहा, उसका रिएक्शन नहीं आ रहा, इंसान
फ्रंट वाला खामोश हो जाता है, इट स्टिल कैरीज रिस्पॉन्स, क्योंकि खामोश हो जाना भी एक रिस्पॉन्स होता है। आई फ्लाई अबव द विंड, मैं से लगता है कि जैसे मैं हवाओं के ऊपर उड़ रहा हूं। येट कैन आई नॉट राइज, और कहता है फिर भी कहता है मैं कहीं पहुंच नहीं रहा, फिर भी मैं मंजिल तक नहीं पहुंच रहा, फिर भी मैं कहीं पहुंच नहीं रहा। मेरी परवाज तो इतनी ऊंची है कि जैसे मैं हवाओं पे उड़ रहा हूं, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट रीचिंग एनीवेयर। सो लुक एट द पोएट हाउ ही इज यूजिंग पैराडॉक्स। यहाँ पे भी पैराडॉक्स है, हमने यही चीजें फाइंड करनी है, यही उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है कि पोएट क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहा है। तो यहाँ पे उसने कौन सी यूज की है। और एक चीज और कि जब सेंटेंस की सेंस जो है आगे चलती है तो उसको क्या कहते हैं, रन ऑन सेंटेंस भी कहते हैं उसको, और उसको कहते हैं इंजेबमेंट। क्या उसको कहते हैं, इंजेबमेंट। और पोएट क्यों यूज करता है इस तरह की चीजें, पोएट इस तरह की चीजें इसलिए यूज करते हैं ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें अपनी सेंस को आगे। इंजेबमेंट की स्पेलिंग लिख रहे हैं, ENJAMENT, बी साइलेंट, इंजेबमेंट। ठीक, सो इंजेबमेंट, रन ऑन लाइन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रन ऑन लाइन। तो पोएट ये यूज करेगा, एलिट्रेशन यूज करेगा। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही जो वर्ड है उसका जो तकरार होता है बार बार, उस साउंड का है, एक साउंड का जो तकरार बार बार आता है उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। और उसके बाद उसने क्या यूज किया, डिस्टर्ब फ्लो है इसके अंदर। डिस्टर्ब ऐसे लगता है कि जैसे फ्लो भी डिस्टर्ब फ्लो। ठीक है, डैशेस का इस्तेमाल किया उसने, इन चीजों का, कोम सेमी कॉलन का, एलिट्रेशन यूज की है, और उसके बाद राइमिंग स्कीम उसने यूज की है। और ऐसे लगता है कि पोएम जो है लव और डिप्रेशन के दरमियान है। ठीक है, लिविंग और डाइंग के दरमियान है, ये इन दोनों के दरमियान ऐसे चलती है। एंड थॉट्स एंड नॉट, नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं। एंड नॉट आई हैव, मेरे पास कुछ नहीं। एंड नॉट आई हैव, एंड ऑल द वर्ड आई सीज्ड ऑन, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल फारग हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। एंड ऑल द वर्ड आई सीज ऑन, ऐसे लगता है कि जैसे मैंने पूरी दुनिया को अपने ऐसे काबू कर लिया। अब एक साइड पे कहता है मेरे पास कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं होता वो तो दुनिया को ऐसे काबू नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे है, कहता है एंड ऑल द वर्ड सीज ऑन, और मैंने सारी दुनिया को ऐसे सीज किया हुआ, अपने कब्जे में किया हुआ है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किया हुआ। देखें, दो कॉन्ट्रेरी चीजें फिर उसने मिला दी। हमेशा कॉन्ट्रेरी चीजों को साथ मिलाता जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन, पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज। उसके बाद that loseth not locketh holdeth me in prison, और कहता है कि मैं ऐसे है कि that loseth, ना तो वो मुझे छोड़ता है, ढीला छोड़ती है, ना तो कहता है कि मैं उसको ढीला छोड़ता हूं, ना locketh, ना ही उसे पकड़ सकता हूं, holdeth me in prison, कि ये सारा कुछ कहता है कि ये जो दुनिया है ना मुझे ढीला छोड़ती जिसको मैंने सीज किया हुआ है, ना वो मुझे कहता है कि पकड़ती है, ना मुझे होल्ड करती है इन प्रिजन। मुझे ना तो कहता है कि होल्ड करती है, ना पकड़ती है, ना मुझे ढीला छोड़ती, मतलब आई एम इन टेंशन। ये सारी लाइन जो क्या बता रही है कि पोएट किस में है, टेंशन में, परेशान है, डिप्रेस है। ठीक है, and holdeth me yet, कहता है hold and holdeth me not yet can I escape no wise, और holdeth me, और कहता मुझे पकड़ती भी नहीं है, yet can I escape no wise, लेकिन मैं फिर भी कहता है कि मैं escape नहीं कर सकता। nor letteth me live nor die at my device, और कहता है कि ना तो मुझे जीने देती है और ना मरने देती है, कुछ भी नहीं करने देती। यहां पे भी क्या है कि ना मैं जी रहा हूं, यहाँ पे क्या, लेटथ मी, ना मुझे इजाजत देती है कि मैं जी लूं ना मार लूं, दोनों की जो चीजें हैं। इसका मतलब ये सिचुएशन जो है ज्यादा खतरनाक है कि जब आप
टू बी और नॉट टू बी की कंडीशन में हूं, टू बी नॉट टू बी। और ये पोएट का कौन सा दौर है, जिस दौर का पोएट है, कौन सा उस वक्त को इंग्लैंड के अंदर क्या चल रहा था, रेनेसेंस एज। लिख लें, ये रेनेसेंस राइटर हैं। कौन से राइटर हैं, रेनेसेंस एज के। 14 सेंचुरी से लेके 17 सेंचुरी तक, यानी 15 सेंचुरी से राउंड अबाउट 17 सेंचुरी तक का जो जमाना है, जो एरिया है, वो सारा किस में आएगा, रेनेसेंस एज में। याद रखिएगा। एंड येट ऑफ डेथ इट गिवथ मी ओकेजन। हाँ कहता है कि येट, और फिर कहता है और तब, ऑफ डेथ इट गिवथ मी ओकेजन, लेकिन कहता है कि कभी कभी ये मुझे देती है चांस, किसका, मौत का। अब हमने 8 लाइन में उसने क्या बताया, अपनी प्रॉब्लम बता दी। पोएट को क्या मसला है फातिमा, पोएट क्या बता रहा है, प्रॉब्लम उसने अपनी बता दी। मैंने आपको सारा बता दिया कि उसकी बिलवर्ड ने उसको छोड़ दिया है, ना जिंदगी अच्छी लग रही है, ना बुरी लग रही है, ना जी रहा है, ना मर रहा है, ना वो छोड़ रही है उसे, ना ढीला छोड़ रही है दुनिया, और ऐसे लगता है कि जैसे वो उसके पास कुछ नहीं और पूरी दुनिया को उसने सीज किया हुआ। मतलब प्रॉब्लम आ गई कि पोएट कंफ्यूज्ड है, डिप्रेस्ड है, बैफल्ड है, रिजेंटमेंट में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, सारे मसाइल उसके साथ है, ना जी रहा है, ना मर रहा है। अब यहाँ पे वो अपना सोल्यूशन बताएगा। ये कितनी लाइंस है, गिन लें, 3 और ये 3, और ये किस तरह, यस, ये मैंने आपको बताया था, ये अक्सर होंगी ऐसे CDE की शक्ल में। लेट्स चेक इट। विदाउट आईज आई सी एंड विदाउट टंग आई प्लेन। कहता है कि मैं, ऐसे लगता है कि विदाउट आइन आई सी, बगैर आंखों के मैं देखता हूं, एंड विदाउट टंग आई प्लेन, और बगैर जबान के कहता है कि मैं ऐसे, कहता है सीधा खड़ा हूं, बगैर जबान के ही मैं खड़ा हूं, यानी मैं बोल भी नहीं रहा और मैं देख भी नहीं रहा। बगैर जबान के कहता है मैं बोल रहा हूं, और बगैर आंखों के ही कहता है मैं देख रहा हूं। ये भी यहां पे भी कंडीशन कुछ ऐसी है। आई डिजायर टू पेरिश, मैं खत्म होने की कोशिश करता हूं, पेरिश खत्म होना, एंड येट आस्क हेल्थ, और फिर कहता है मैं अपनी सेहत का भी पूछता हूं, सोचता हूं। आई लव एन अदर, मैं किसी और को चाहने की कोशिश करता हूं। 10 हेट माई सेल्फ, फिर मैं कहता अपने आप से नफरत करता हूं। आई फीड मी इन सॉरो, मैं अपने आप को, कहता है कि मैं कुछ खाने की कोशिश करता हूं, परेशानी में कहता है कुछ मैं अपने आप को फीड करने की कोशिश करता हूं। एंड लाफ एट ऑल माई पेन, और मैं पूरे दुखों, अपने दुखों पे हंसता हूं। लाइकवाइज डिस्प्लीसेथ मी बोथ लाइफ एंड डेथ, और ये कहता है कि इससे ही है कि जैसे मुझे जिंदगी और डेथ जो है वो दोनों बुरी लग रही हैं। एंड माई डिलाइट इज कॉजर्स ऑफ दिस स्ट्राइफ, और मेरी खुशी ही इन सब, जितनी भी मैं कोशिश करता हूं, कहता है इसकी मेरी खुशी, कहता है कि मेरी कोशिशों की काजर है। मैं जिसके लिए, कहता है मैं खुश रहता था या खुश रहने की मैंने कोशिश की, वही मेरी इन सारी ट्रबल का कॉज है। सो ये थे सर थॉमस वाइट। सर थॉमस वाइट के बारे में मैंने आपको बताया, आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा सरे को भी डिस्कस कर लेते हैं। अर्ल ऑफ सरे, इनके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लें ताकि आपको याद रहे। अर्ल ऑफ सरे का रियल नाम है हेनरी हॉवर्ड। क्या नाम है? हेनरी हॉवर्ड 1517 में पैदा हुए हैं और 1547 में इनकी डेथ हुई है। और ये हेनरी 8 का जो इलिजिटिमेट बेटा था, फ्रिट्ज रॉय, ये उसका बड़ा दोस्त था। उसके साथ ये इन्होंने इकट्ठा बचपन में टाइम गुजारा था हेनरी हॉवर्ड ने। और हेनरी हॉवर्ड दोस्त बन जाता है। हेनरी, ये सरे की कजन थी, उसका नाम था एन बोलन। तो वो, चूंकि ये थॉमस वाइट का बहुत अच्छा दोस्त था, ये उसको उस्ताद मानता था, तो वो भी इसके साथ ही रहती थी। तो इसी तरह दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो उसकी बिलव्ड बन गई और उनका बहुत गहरा ताल्लुक बन गया। ये जो सरे है, सरे ने अपनी जितनी भी पोएट्री की है, इसने एड्रेस किया है गैरल्डाइन को। गैरल्डाइन एक फीमेल थी, उसको इसने एड्रेस किया है और इसने भी पोएट्री की है।
आपको सरे ने एक्सपेरिमेंट करके दिया इटालियन पोइट्री को। इसने क्या किया, इटालियन सोनेट को वो क्या करता है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। मैंने पहले आपको क्या बताया कि सोनेट कैसे थी, 8 लाइन और 6 लाइन। यहां प्रॉब्लम, यहां सोल्यूशन, यहां प्रॉब्लम है और यहां क्या था, सोल्यूशन है 6 लाइन। ठीक है, ये 14 लाइंस थी। लेकिन सरे क्या करता है, सरे एक्सपेरिमेंट करेगा। क्या करेगा, 4 लाइन का एक क्वार्टरन बनाएगा। ठीक है जी, फिर 4 लाइन का एक और बना देगा, फिर 4 लाइन का एक और बना देता है, और फिर नीचे 2 लाइन का कॉपलेट डाल देता है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां 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 प्रॉब्लम चलती आती है, इन 2 लाइन में सोल्यूशन होता है। इसको मेरे साथ रिपीट करें जो मैंने अभी आपको बताई है बात। यानी इटालियन सोनेट कैसे थी, उसमें 14 मिसरे इटालियन होते, सोनेट 14 लाइंस होती थी, जी और सर। उसमें यानी 8 और 6 लाइन, 8 ऊपर होती प्रॉब्लम, 6 लाइन का सोल्यूशन। लेकिन इसने क्या किया, जी इसने पे एक्सपेरिमेंट किया, उसको सेगमेंटाइज कर दिया, मतलब उसको सेगमेंट में बांट दिया, 4-4 के उसने उसके स्टेंजाज बना दिए। स्टेंजा कैसे बनाता है, 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन, ये 12 लाइन बन गई, और नीचे 2 लाइन का कॉपलेट डाल दिया। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया है, ये डिसाइपल था सर थॉमस वाइट का, और फर्स्ट है जिसने पब्लिश किया किसको, विर्जिल का जो वर्क है उसको इसने ब्लैंक वर्स में इसने पहली दफा पर पब्लिश किया। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था विर्जिल के वर्क का नाम क्या था। विर्जिल ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, एनीड। एनीड, AENEID, एनीड। और इसमें हीरो कौन था, एनीस। इसको ब्लैंक वर्स में इसने पहली दफा इसने किया ट्रांसलेट इंग्लिश में। ठीक है, ये इसका काम है। और इसने क्या किया, इसने कॉन्सेप्ट दिया रेनेसेंस एज के अंदर। इसने कॉन्सेप्ट दिया किसको, एक तो रेनेसेंस एज को इसने सोनेट दी। ठीक है, और इसके बाद शेक्सपियर के लिए रास्ता हमवार हो गया, और शेक्सपियर ने जो फिर सोनेट जो की है रेनेसेंस एज में, एलिजाबेथन एज में, वो एलिजाबेथन जो पोइट्री है, सोनेट जो है, वो किसकी वजह से है, वो इस बंदे की वजह से है, क्योंकि इसने उसको क्या किया, 4-4-4-4 की 12 लाइन बनाई, और नीचे 2 लाइन का कॉपलेट डाल के 14 लाइन बना के दिखाया। तो इसमें एक्सपेरिमेंट पहले, सबसे पहले सरे ने किया था। मतलब फर्स्ट है जिसने कॉन्सेप्ट दिया, एक्सपेरिमेंट किया सोनेट के ऊपर, और ये कॉन्सेप्ट उसने कहाँ से लिया, अपने उस्ताद से। उस्ताद उसका इटली से लेकर आया इटालियन सोनेट को, और इसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इसने पोइट्री भी की, इसने विर्जल के वर्क को, एनीड को उसने क्या किया, एनीड को इसने ट्रांसलेट किया और ब्लैंक वर्स में लिखा। इसने 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा बनाए, और 2 लाइन का यानी ये कॉपलेट डाल दिया, और 14 लाइन की सोनेट को इसने न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ पेश किया, और एलिजाबेथन और शेक्सपियरन सोनेट को एक नई फॉर्म दी। और उसके बाद इसको जाना जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट भी इसको जाना जाता है। और इसने जिसको एड्रेस किया उसका नाम था गैरल्डाइंस। गैरल्डाइन वो औरत थी, या जेरल्डाइन जो भी था, उसको इसने एड्रेस किया है अपनी पोएट्री के अंदर। इसकी भी सोनेट हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर। होप यू गॉट द पॉइंट। इन पॉइंट्स को लिख लेना था। अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं इसको अपने लफ्जों में बयान करें, मैंने क्या क्या बताया अभी। थॉमस वाइट जो टीचर ऑफ अर्ल ऑफ सरे, थॉमस वाइट ने इटालियन सोनेट को कॉपी करके उसे इंग्लैंड में फॉर्म किया, और वो इंग्लैंड में उन्होंने अपने ही वर्ड्स में एड्रेस किया। और फिर जो है अर्ल ऑफ सरे ने उसे अपने ही टीचर को फॉलो किया, मगर थोड़ी सी उसने आउटलुक नहीं अपनी दे दी कि 4-4 क्वार्टर बनाए, 4 लाइंस का एक क्वार्टर, और 3 क्वार्टर्स ने वो किया, डिस्ट्रीब्यूट किया 12 लाइंस को, और एंड में 2 लाइंस पे उसने कंक्लूड किया और सोल्यूशन बताया। और सरे ने सर सभी का बताया, और वो थॉमस वाइट ने 8 लाइंस में उसने अपने इश्यूज बताए अपने लवर्ड के, और फिर 4 लाइंस में उसने सोल्यूशन बताया। very good. It mean you got idea if questions are
arised from this Renaissance age, you can answer easily. So tomorrow inshallah we'll discuss Plato's work, और इनकी कुछ sonnets भी देखेंगे न्यू. ये बड़े इंटरेस्टिंग है दोनों पोएट, और इनको इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे. उसके बाद एडमंड स्पेंसर को स्टडी करेंगे, फेरी क्वीन को स्टडी करेंगे, हम फिलिप सिडनी को स्टडी करेंगे, हम रोमन क्रिटिसिज्म को स्टडी करेंगे, हम ड्राइडन को स्टडी करेंगे, जॉनसन को स्टडी करेंगे, ठीक है, सैम्यूल जॉनसन को स्टडी करेंगे, हम सारे पोएट्स को स्टडी करेंगे, colonial पोस्ट colonial लिटरेचर को. So have a nice time. Tomorrow inshallah we'll come up with new poems and new sonnets, as well as Aristotle's criticism के साथ आएंगे. Stay blessed. Have a nice time.